नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रेरणा पथ विद जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम उन व्यक्तित्वों से मिलते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, परिश्रम और संकल्प से समाज में प्रेरणा की मिसाल बनाई है। इस एपिसोड में हमारे विशेष अतिथि हैं माही दुबे जी, जो MD आर्ट्स प्रोडक्शन के संस्थापक हैं। माही दुबे जी ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में अपनी पहली फिल्म बनाई और 16 वर्ष की उम्र में फिल्म निर्माण को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। सन 2018 में आपने MD आर्ट्स प्रोडक्शन की स्थापना की और तब से आप फिल्म निर्माण, एडिटिंग और क्रिएटिव कार्यों में सक्रिय हैं। आप बॉलीवुड और वैश्विक फिल्मों में सह निर्माता के रूप में कार्य कर चुके हैं। साथ ही कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लेखन कार्य भी किया है। आप IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अतिथि के रूप में भी शामिल हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फिल्म आयाम से भी जुड़े हुए हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे छोटे शहर से फिल्म इंडस्ट्री तक की यात्रा, फिल्म निर्माण के अनुभव, संघर्ष और सफलता की कहानी, युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश। अगर आपको यह एपिसोड प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। IFFI is proving to be a boon for filmmakers, and initiatives like such exhibitions are adding more color to their experience. And we have with us Mr. Mahi Dubey, who is a filmmaker and here to explore different parameters, different panoramas presented by IFFI. How your experience have been so far? Like it's great. It's a wonderful experience. First of all, thank you so much for interviewing me. Like it's an honor for me to stand here in the Kala Academy. It's this Kala Academy. CMOT filmmakers are there. It's really privileged. And also we could say like this is a Mahakumbh of Indian cinema, which we are seeing today. Like there are many filmmakers came from around the world. Like I've seen more than 20 films yesterday. I visited. Like they were wonderful, amazing. Yeah. And what do you think about the different initiatives apart from the film screenings, like the Postal Stamps exhibition, and there are different sort of camera exhibitions as well here? Yeah, I really like this actually. The postal stamps plus the detail and the My Stamp Yojana definitely. I would thank Sindhya ji also. He's from my consistency. I'm from Guna basically. It's just wonderful. My Stamp is wonderful. You can have your picture with the logo of IFFI, which makes it incredible and a good memory. Yeah, so it's great, like wonderful. Like I'm enjoying. And also, since you are a filmmaker, how IFFI is helping you to, bring in more collaboration and to strengthen the body of work that you are doing? Yeah, last year my film was in preview room. Actually, it helped a lot. I found two producers, one from Dubai and another from the UK, and we made a film called Ticketek Sangharsh, and it got released in the theaters many. And this year I'm invited by the ministry itself. Like it's really privilege and a great thing for me, and I'm really thankful. Yeah. So as Mahi said, that this is the Mahakumbh of Indian cinema when we talk about, and everybody is really enjoying the different initiatives also by the Postal Department, by the Government of India, by the Government of Goa, and the rest of the initiatives put in place and put together by all the departments, ministries and governments. नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रेरणा पथ विद जितेंद्र ब्रह्मभट्ट। मित्रों, हमारा जो उद्देश्य है और लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि समाज के ऐसे लोग आपके सामने आए जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया हो और समाज को कोई ऐसी मिसाल पेश करें जिससे हम लोग उनसे सीख सकें। ऐसे ही क्रम में हम लोग एपिसोड में आज के जिस व्यक्ति को लेके आए हैं, उसने 12 वर्ष की उम्र में अपनी फिल्मी दुनिया में अपना फिल्म बनाने की सोची। 16 वर्ष की उम्र में उसने यह निर्णय लिया कि मुझे एक फिल्म बनाना है और सन 2018 में वो एक प्रोडक्शन की स्थापना करता है। उसे हम लोग कहते हैं MD आर्ट प्रोडक्शन, और उसकी स्थापना से लेके उन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड अनेक क्षेत्रों में एडिटिंग का काम किया और सह निर्देशक के रूप में भी काम किया। आप बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में काम कर रहे हैं। अभी हमारे देश में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपको अतिथि के रूप में जाने का मौका मिला, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं। ऐसा एक सामान्य परिवार से निकला प्रेरणादायक व्यक्तित्व, जिसका कोई पृष्ठभूमि फिल्मी लाइन की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको अपने करियर के रूप में चुनता है
और मैं बात कर रहा हूँ हमारे माही दुबे जी का। माही दुबे जी, आपका ब्रॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत माही जी, जैसा लोग कहते हैं फिल्म दुनिया में जाते हैं, मुझे अक्षय कुमार जी की फिल्म है उसके एक गाना याद आता है, ना हम दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे माही। और माही जी, आपको कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं आप, कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? जी, हमारा गुना में निवास है और मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ असल में। तो मेरे पिताजी 4 भाई हैं और 3 बहनें, ऐसे भरा पूरा मेरा परिवार है। और हमारा चूंकि संयुक्त परिवार है तो 3 हम भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो एक बड़ा संयुक्त परिवार है और बहुत अच्छा। और मैं फिल्मों में भी बढ़ा तो उसमें भी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान था। निश्चित रूप से वो अपने यहाँ फिल्मों में कोई होता नहीं है, मगर परिवार ने सदैव बहुत साथ दिया और कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, तो कभी अड़चन नहीं। आपकी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएं। स्कूलिंग 1 कॉन्वेंट स्कूल से। जब 12-13 वर्ष की उम्र में आपके मन में आया कि मुझे फिल्म बनाना है या फिल्म बनाना है, तो उस समय संसाधन नहीं थे, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली आपको वो वाली? जी हाँ, मैं छोटा था। अब निश्चित रूप से जब 12-13 साल के हम होते हैं तो बहुत सोचने में तो कुछ होता नहीं है करियर के बारे में, मगर जब मैं शॉर्ट फिल्म और वो निकलोडियन चैनल पे कुछ फिल्में देखता था और अपने घरों में उस समय दूरदर्शन पे रामायण आती थी, रामानंद सागर जी की, तो वो बड़ी चलन में थी। तो वो जब हनुमान जी उड़ते थे, राम जी तीर चलाते थे, तो मेरे मन में आता था यार ये होता कैसे है, मतलब एकदम इफेक्ट आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, साउंड है, होता कैसे। तो हमारे यहाँ इंटरनेट था, एक कंप्यूटर होता था वो मोटे से जो पहले आते थे, उसमें सर्च करना शुरू किया तो समझ में आया कि यार फिल्म कैसे बनाते हैं। तो उस समय एक मूवी मेकर करके टूल होता था, विंडोज एक्सपी में फ्री आता था, पेंट होता था, तो उससे प्रारंभ किया और करा, एक शॉर्ट फिल्म बना दी। 12-13 सेकंड की होगी वो, मात्र सिर्फ एक क्लिप थी कि एक लड़का घर से निकलता है और कहीं पे जाके गिर जाता है, वो कुछ गलत कर्म करता है, एक बैल को कुछ फेंक देता है और आगे जाके गिर जाता है। तो उसको मैंने यूट्यूब पे डाल दिया उस समय, और उस समय यूट्यूब पे उसको 4000 व्यू आए। हमारे फिर श्याम सोनी जी हैं, श्याम सुंदर सोनी, तो वो मेरे पिताजी के मित्र हैं, वो घर आते थे, तो उस समय उन्होंने मुझे फोटोशॉप सिखा दिया, एक प्रीमियर प्रो होता था वो सिखा दिया, तो मैंने थोड़ा अपडेट किया। तो वो हनुमान जी जो अवचेतन में थे, तो मेरा छोटा भाई है यथार्थ अद्दू, तो उसको अद्दू है उसका नाम, तो अद्दूमान हनुमान जी से प्रेरित होके अद्दूमान बना के फिल्म बना दी, कैरेक्टर बन गया अद्दूमान। तो पिक्चर का नाम रखा, 12-13 साल की उम्र की बात चल रही है, एडवेंचर्स ऑफ अद्दूमान। ऐसे कैमरा रख लेते थे सामने और ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते थे, उसको क्रोमा कट करके पिक्चर बनाते थे। तब कई लोग कहते थे यार ये क्या है, तू कहाँ लग रहा है, जब तुझे खेलना चाहिए, वीडियो गेम बनाना चाहिए, मगर आनंद आता था। और उसको डाला यूट्यूब पे, तो उस पे भी 8-9 हजार व्यू उस समय पर रहे। तो मही भाई, जैसे आपने बताया कि अभी मैंने भी आपसे कहा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्म लाइन की नहीं है, लेकिन जब आप इस लाइन में आए तो आपने खुद पर विश्वास कैसे बनाए रखा? क्योंकि व्यक्ति टूटता बहुत जल्दी और पारिवारिक वातावरण ऐसा नहीं, तो अपने आप पे कैसे विश्वास बनाया? नहीं, ये सबसे बड़ी बात रही कि जो मेरा परिवार है ना, उसने सदैव मुझे ऐसा किया कि तुम्हें जो करना है करो। और मैंने पापा से कहा कि यार पापा अब इस पर ना काम नहीं हो रहा है, इस लैपटॉप पे नया लैपटॉप चाहिए। तो उन्होंने मुझे नया लैपटॉप ला के दिया, उस पर मैंने फिर एडिटिंग शुरू की। मेरे चाचा जी कैमरा पकड़ते थे, वो मेरी जो चाची हैं, माता जी हैं, वो अद्दू को तैयार करती थी, और ऐसे करके फिल्में शुरू की। बुआ भी आ जाती थी उस समय जब होता था। अब डायलॉग तो मैं लिख नहीं सकता 14 साल का, तो बुआ से लिखवा लेता था। मतलब एक बड़ा परिवार का हो रहा। और आज भी मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो पापा को तो पता भी नहीं है कि अभी मैं कल शिवपुरी था, तो मैं वहां से यहाँ आ गया, पापा को पता ही नहीं। लेकिन बीच में चाचा के 4 बार फोन आ गया, यार कहाँ तक पहुंचे, क्या। और जो ड्राइवर भैया है उनको अलग से फोन कर दिया, अच्छा उसकी बैठक चल रही होगी, ठीक है। भाई, जैसे छोटे शहर से कोई बच्चा निकलता है और बॉलीवुड तक पहुंचता है, यात्रा में सबसे कठिन रात कौन सी रही आपकी? यात्रा नहीं, मैं तो बस इसको एंजॉय करता रहा और एंजॉय करते करते काम किया और सब होता गया ना। एडिटिंग करना सीखा, मतलब सब होता गया। आपको फिल्म लाइन में जाने की प्रेरणा कहाँ से, कैसे मिली? वही रामानंद सागर जी। अच्छा, वहाँ से। वो उनकी फिल्में जब देखी तो मन में आता था ना कि कैसे करें, तो वो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे पिताजी, असल में ये प्रसंग मैंने कहीं सुनाया जी, कि मेरे पिताजी और तरुण सूद जो वरुण होटल वाले हैं, वो बड़े परम मित्र हैं बचपन से।
और 1983 में, हाँ 83 में FTI जो भारतीय फिल्म संस्थान होता है पुणे, तो वहाँ वो पेपर देने गए थे एंट्रेंस टेस्ट। उन्हें पापा को हीरो बनना था और ताऊ जी को फिल्म डायरेक्टर बनना था। तो मेरे पिताजी क्या अवचेतन में था और उन्होंने असल में रामलीला का भी मंचन बहुत किया उस समय पे। तो अब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो अवचेतन में मेरे अंदर आया है, ये जो बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म में बनाऊं। आज भी लगता है कि मैं और अच्छा करूं। जैसे कि आपको कभी क्या ऐसा लगा कि मैं अपने सपने को छोड़ दूं, या उसे मोड़ पर कोई आपने, क्या लगा आपको? नहीं, क्यों छोड़ना, क्यों, जब सब अच्छा हो रहा है तो क्यों छोड़ना। और हम तो मुझे अभी एक वाक्य याद आ रहा है, अपने पंडित बुद्धि शरण शुक्ल जी हैं जी। वो लिखते हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे स्कूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल ना हो। तो जब बाधाएं नहीं आएंगी तो हम निकलेंगे कैसे। भाई जैसा आप और फिर आपने तो विवेकानंद जी का यहाँ चित्र लगाया हुआ है, तो ये हम लोगों के आदर्श पुरुष रहे हैं। जैसे भाई आपने अब ये फिल्म का काम था 16 वर्ष की उम्र में स्टार्ट किया। अगर आज के समय में कोई बच्चा इस 16 वर्ष की उम्र में अगर इस फील्ड में जाना चाहे तो आप उसे क्या सलाह देंगे? फिल्मों में यदि जाना है किसी भी बच्चे को तो निश्चित रूप से देखो रुचि का विषय है पहले तो। और यदि वो जाता है, उसको सीखना यदि है तो वो फिल्में देखे, भारतीय सिनेमा को देखे, हमारे यहाँ की फिल्मों को देखे, बाहर की फिल्मों को एक्सपीरियंस करे, ये सोचे कि ये फिल्में बनती कैसे हैं। एक चीज़ ये टेक्निकल पार्ट है, दूसरा भावनात्मक। ट्रेन के डिब्बे में जा रहे हैं तो क्यों ना ये सोचना कि यार यदि मैं इस फिल्म को सीन को शूट करूँगा तो कैसे करूँगा, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो कितने एंगल हो सकते हैं। और मनुष्य के भावनाओं को समझे, जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि रस की बात करते हैं, वो 9 रसों को समझे और पढ़े। उसको पढ़ना तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। लिटरेचर पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे, कविताएं पढ़ोगे तो अपने आप ज्ञान आएगा और वो फिल्में बना सकता है। भाई जैसे अभी आपने 2018 में MD आर्ट प्रोडक्शन की स्थापना की, तो शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या रही, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये जो कार्य हुआ ये भी चुनौती का नहीं है एकदम, वो उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटली हुआ है। कैसे कि उस समय मैं एडिटिंग का काम करता था, कोविड का टाइम था 12th में। भाई जैसे आपने 2018 में MD आर्ट प्रोडक्शन की स्थापना की, तो उस समय आपके सामने चुनौतियाँ क्या रही? कंपनी को स्टार्ट करना असल में चुनौतीपूर्ण नहीं था, वो एकदम कोइंसिडेंटली हुआ। कैसे कि हम इंटरनेशनल कुछ काम करते थे, 12th में कोविड लग गया था, तो कोविड मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा वो करके आया। मैं उसको कोरोना काल नहीं, वो अध्ययन काल कहता हूँ। कोविड का वर्क फ्रॉम होम वाली चीज आ गई, ऑनलाइन पोर्टल्स चालू हुए, जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, ऐसे तमाम करके OTT, तो इंटरनेशनल काम आने लगा। अब उस काम को शो कहाँ करेंगे, तो कंपनी भी चाहिए थी, पैन कार्ड भी चाहिए था। तो मैंने फिर पिताजी को उसका बोर्ड डायरेक्टर बना के, चाची को मेंबर बना के कुछ भी करके कंपनी चालू की। अब आज ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा है कि हमारे 8 से 10 लोग उसमें काम करते हैं और हमने अभी तक 900 से ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डिलीवरी की है, जो भारत के भी हैं, बाहर के भी हैं। टोटल 900 बिल हमने अभी तक फाड़े हैं। मैं अभी पिछले महीने देख रहा था, तो ऐसा भी किया। और अब मैन पावर बढ़ी है, 8-9 लोग हमारे साथ हो गए और करीबन 12-13 इंटरनेशनल फिल्म में एज एन एडिटर करने का सौभाग्य मिला। और उस बीच एक बहुत अच्छी घटना ये भी हुई कोविड में। 12th के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो हमारे ग्रेग प्लांट फ्लोरिडा के हैं, US के, तो उनकी कंपनी है साउंड ट्री पिक्चर्स। तो उन्हें एक उनकी ज़रूरत थी ऐसे कुछ लोगों की, तो मैंने एक इंटर्नशिप जैसी वहाँ पे कर ली अमेरिकन कंपनी। तो वो वर्क आवर्स मैच नहीं करते थे, मगर कर ली उस समय। ऐसा लगा था कि पढ़ाई तो हो नहीं रही, कोविड है, तो चलो इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप की तो 6 महीने में इतना ज़्यादा सीखने मिला। मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड समझ गया कि यार इंटरनेशनल काम कैसे होता है, 3 सॉफ्टवेयर को लिंक कैसे काम करते हैं, क्लाउड बेस्ड एडिटिंग कैसे होती है। क्योंकि यहाँ रह के वहाँ की फिल्म एडिट करना, कंटेंट डाउनलोड भी नहीं करना लेकिन हम एडिट कर सकते हैं, प्रॉक्सी फाइल कैसे बनाते हैं, तो वो इतना अच्छा रहा। और आज अब मैं अपन अभी काम करता हूँ तो उसमें बड़ा अच्छा होता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम किया, तो जब आप ये काम कर रहे थे तो आपको क्या सीखने को मिला इन सब चीज़ों में? कि बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में हम लोग काम कर रहे हैं, सीखने को क्या मिला? सबसे पहले तो हॉलीवुड का मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमें बॉलीवुड शब्द का उपयोग नहीं करना जी, उसे हमें भारतीय सिनेमा कहना है जी। असल में हॉलीवुड एक जगह है,
उसका नाम रख के वो हॉलीवुड है। और वो क्यों आया? क्योंकि वो होली है, होली है। होली मतलब पवित्र, पवित्र स्थल, सिनेमा का पवित्र स्थल तो हॉलीवुड। और भारत के संदर्भ में हमारे यहाँ शोले और ऐसी कुछ फिल्में बनी 1970s में, जो हमने हॉलीवुड वेस्टर्न्स को कॉपी किया। यहाँ पे सलीम साहब और जावेद साहब थे, तो वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मगर दूसरों को कॉपी करते थे, फिल्में बनाते थे। दीवार हेटू ही शोले बना दी, 2-4 फिल्में और बना दी। तो बीबीसी ने वहाँ अमेरिका में एक लेख लिखा कि यहाँ हम हॉलीवुड हैं, और अपने को भारत को कोट करते हुए, द प्लेस दैट कॉपीज अस इज बॉलीवुड। हॉलीवुड को कॉपी करती है, इसलिए इसका नाम बॉलीवुड है। तो वो लेख हमें को उपहास उड़ाते हुए हमें हॉलीवुड बॉलीवुड उन्होंने कहा था, और उसको आज हम बॉलीवुड ही कहने लगे हैं। तो हमें बॉलीवुड की जगह उसे हमेशा भारतीय सिनेमा कहना है। जिस भी भाषा की फिल्म हो, हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा हमारी गौरवान्वित करने वाली भाषा है। सीखने वाली बात तो नहीं, आप बताइए। सीखने में वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पता चले, और वो लोग काम को ना बड़ा पैशन की तरह करते हैं। मतलब पैसा बाद है, लेकिन पैशन पहले। तो हमें सीखने बहुत मिलता है। कई बार आज भी है, हमें पैसा नहीं मिलता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, मगर सीखने की अपेक्षा से काम करूँ ना, तो अगला जो काम मिलेगा उसमें हम पैसा कमा लेंगे। जैसे कि माही भाई, आपसे बात करके एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली कि आपने बॉलीवुड नहीं कहना, हमको भारतीय सिनेमा कहना है। और हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमने भारतीय के बाद तमिल सिनेमा, गुजरात सिनेमा, हिंदी सिनेमा, इस तरह से हम उनको कहें तो एक अपना आत्मीयता भी है। और उन लोगों ने जो एक हम पे कमेंट्स किया है कि आप हमारी कॉपी करते हैं, इसलिए हम आपको बॉलीवुड कहते हैं, एक मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए कि आज से हम जिस बॉलीवुड ना कहते हुए इसे भारतीय सिनेमा कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। एडिटिंग करते समय फिल्मों को आप किस दृष्टि से देखते हैं, तकनीक या भावनात्मक दृष्टि से? एडिटिंग करते समय सिर्फ तकनीक, जो एडिटर ने, जो डायरेक्टर ने कहा वो करना है, एक बात। और दूसरा, उस फिल्म का क्राफ्ट मैं तय करूंगा, किस कलर में वो जाना है, क्या डीआई उसका होगा, क्या उसका नीश होगा, कैसे शॉट्स यूज होंगे, वो मेरे हाथ में है। तो वो भावनात्मक काम है। और जब मैं फिल्मों का निर्देशन करता हूँ तो वो तो टोटल भावनात्मक होता ही है। जैसे एक छोटे शहर का बच्चे ने, एक छोटा शहर का युवा यहाँ छोटे शहर से निकलता है, फिल्म इंडस्ट्री में नेटवर्किंग कितनी आवश्यक है? सबसे महत्वपूर्ण। कैसे? सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि नेटवर्किंग क्यों है ना, एक तो नेटवर्किंग कैसे करें, फेस्टिवल्स होते हैं, असल में तमाम फेस्टिवल होते हैं। आजकल एक बहुत अच्छा कल्प भारत में चलता है, जो भारतीयता की बात करता है, भारत बोध की बात करता है, अपना भारतीय चित्र साधना। तो वो हर 2 वर्ष में एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल करते हैं। लगभग उसमें 50 लाख रुपए तक की राशि के पुरस्कार देते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को। उनका थीम ही है कि हमें सिनेमा को डिसेंट्रलाइज करना है। सिनेमा मतलब मुंबई नहीं, सिनेमा मतलब भारत। भारत के कण कण में फिल्में बनती हैं, कण कण से कहानियां निकलती हैं। और आज ऐसा है भी कि मुंबई में मात्र 30% फिल्म शूट होती है, 70% अगल बगल बनती है। हम मध्य प्रदेश के बारे में भी बात करें तो नेटवर्किंग में भारतीय चित्र साधना को फॉलो करिए। वो लगभग 45 और फेस्टिवल्स करते हैं हर साल, अल्टरनेट। जैसे 2025 में 45 होंगे, तो 2 साल बाद 45 होंगे, ऐसे करके 20-20 करके करते हैं। तो उन फेस्टिवल्स में आप जाइए, शॉर्ट फिल्म बनाइए, वहाँ भेजिए, तो उसमें नेटवर्किंग होगी। नेटवर्किंग में आपको कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आप अपनी कहानी किसी प्रोड्यूसर को सुनाओगे, या आप राइटर हो या आप डायरेक्टर हो तो आपको प्रोड्यूसर मिलेगा, राइटर हो तो डायरेक्टर मिलेगा, और वो आपकी हेल्प करेगा, तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपने भी जैसे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल जो है, आप उसमें शामिल हुए, तो आपको कैसा अनुभव रहा उस जगह पर? वो मेरे लिए ना बड़ा एक बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब मैंने कभी जीवन में सोचा था कि मैं कभी 30, 35, 40 साल की उम्र में जब किसी स्थान पर बैठा हूँगा तो मैं जाऊँगा। मतलब मेरे लिए वो मंदिर था ना यार, इतनी बड़ी जगह जाना हम कल्पना नहीं करते। और फिर वहां मुझे भारत सरकार ने अतिथि के रूप में बुला लिया कि आप आइए क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं और वहाँ का फिल्म के बारे में आप रीजनलिटी को बिलोंग करते हो, तो आप आइए। तो मतलब वो 10 दिन मेरे जीवन के सबसे अभूतपूर्व क्षण था। कहाँ गए थे आप? गोवा में होता है, लगभग 81 देश मिलके उस आयोजन को करते हैं। तो वो G20 के तर्ज पे ये वाला हमारा हुआ था। ग्वालियर भी आपने बताया कि आप भारतीय फिल्म सिनेमा के साथ काम कर रहे हैं, वैश्विक सिनेमा के साथ काम कर रहे हैं।
आपने गुना में कभी पिक्चर बनाई है टिकट एक संघर्ष, उसके बारे में कुछ चीजें बताएं हम लोग। टिकट एक संघर्ष वो मेरे दिल के बड़े करीब है वो फिल्म। असल में यात्रा अगर आप समझो ना कि मैंने ये बनाई क्यों। उस समय क्या होता था, मैं एडिटिंग तो कर रहा था और मेरा काम भी चल पड़ा था, अच्छा काम हो गया, काम कर रहे हैं, आज आ भी रहे हैं, तो लोग मुझसे कहते यार तुम एक एडिटर हो, तुम नहीं समझते कि फिल्म बनाने में कितनी गूदा होना चाहिए, दम चाहिए। मैं एक दिन पिताजी के साथ बैठा था, पिताजी मेरे परम मित्रों में से एक है, मतलब मैंने पिताजी को सम्मान तो नहीं पाया ही, लेकिन मित्र जैसा माना है और वो मेरे मार्गदर्शक है, मेरे गुरु हैं। तो मैं एक दिन पापा के साथ बैठा था, FTI में जो पुणे अपना भारतीय फिल्म संस्थान है, उसमें भी मैं कोर्स करके आया हूँ, वो जिसमें पापा ने पेपर देने गए थे वहां भी कराया। तो वहाँ उसी क्लासेस चलती थी ऑनलाइन, आखिरी में वो ऑनलाइन हो गया था। तो एक दिन मैं पापा के पास नीचे आया कि पापा यार अब तो प्रण ले लिया कि जब तक अपनी एक फीचर फिल्म नहीं बना देंगे ना, तब तक फिर मैं टाकीज ही नहीं जाऊंगा। मुझे एक मेरा प्रश्न है मन में कि हम लोग जब छोटे थे, जब फीचर फिल्म का शेष भाग देखते थे, तो कृपया हमें बताएं फीचर फिल्म क्या होती है। फिर अपना प्रश्न फीचर क्या होता है ना, कैटेगरी है शॉर्ट फिल्म, मतलब ऐसे फिल्म मेकर जो शॉर्ट फिल्म बनाती हैं, छोटी फिल्में, 8, 10, 12, 15, 20 मिनट से कम की फिल्म, वो शॉर्ट फिल्म। हाँ, फीचर फिल्म मतलब ऐसी फिल्में जो सेंसर्ड है, जिनको सेंसर सर्टिफिकेट भारत सरकार से मिला है, जो फिल्म है मान्य है और 75 मिनट से ऊपर की, भारत के संदर्भ में 1.5 घंटे से ऊपर की, तो वो एक बड़ा जोखिम का काम होता है फीचर फिल्म। तो वो अपने आप में नाम है फीचर फिल्म। अब आप बताएं फीचर फिल्म। तो मैंने पिताजी से कहा कि पापा अब तो प्रण ले लिया कि एक फीचर फिल्म बनाएंगे, तभी मैं टाकीज में जाऊंगा। और वो मेरे को शौक क्यों हुई, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं फिल्म पास। तो हमारे यहाँ भजन चाचा जी हैं, तो उनका थिएटर है, शुरू से पहले मुस्कान था, अब सौम्य है, तो मैं हर हफ्ते वहाँ फिल्म देखने जाता हूँ। तो अब उनको लिए ये तो हर हफ्ते जाता है पिक्चर, मैं कहीं और नहीं जाता, मैं सिर्फ फिल्म देखने जाता हूँ और एक अपने घर में काम करता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ, और शादियों में पापा के साथ, बस और कहीं। तो वो बना ली, प्रण ले लिया, अरे तू फीचर फिल्म कैसे बनाएगा, और उनको पता है मैं जब प्रण लेता हूँ ना तो फिर वो पक्की बात है। मैंने 10th में कहा था, असल में 9th में मैं मैथ से मेरे को बहुत डर लगता था, मतलब कम मार्क्स आते थे, बाकी सब में बहुत अच्छे आते थे, मगर मैथ में कम नंबर आते थे। तो 9th में लगभग 44 मार्क्स मेरे मैथ्स में आए थे, वो भी ग्रेड लगती है और ऐसे करके पास किया था। तो मुझे सर ने कह दिया स्कूल में कि बेटा तू 10th में फेल होगा, तो तू 60 के ऊपर ले आया ना तो मैं तो तेरे को मान लूंगा। ऐसी हमारी एक बात हो गई, सर हमारे मतलब मेरे तो सारे वो गुरु हैं। तो मैंने उस दिन कहा कि अब मैं सारा बताता हूँ। तो मैंने 3 महीने पढ़ाई की 10th में और मेरे मैथ्स में आए थे 92 नंबर। तो हमारी सिस्टर कैथरीन ने मुझसे अलग से कहा 11th में बुला के तुम कॉमर्स मत लो, तुम मैथ्स लो। मैंने कहा नहीं सिस्टर, बस हो गया, मैथ से इतना ही संबंध था। तो मैंने वो प्रण लिया कि मैं टिकट बनाऊंगा। नाम भी तय नहीं था, टिकट एक संघर्ष बनानी है। हमारे आलोक श्रीवास्तव जी तहसीलदार हैं अब यशोक में, तो वो घर आती थी और अच्छा साहित्य में उनका अच्छा काम है। तो उन्होंने कहानी लिखी थी, टिकट नाम नहीं था तब, लेकिन एक ऐसी कहानी थी जो 3 विषयों को जोड़ती है, और विद्यार्थी का संघर्ष, नशा और राजनीतिक द्वंद्व, ऐसा द्वंद्व नाम से फिल्म बनाई थी। तो हमने उसको टिकट से जोड़ा, क्योंकि ये जो स्मैक है, चिलम है, इसको टिकट कहते हैं अपने यहाँ भाषा में। तो हम बोलते हैं वो टिकट से जा रहा है, देखो वो टिकट एक विद्यार्थी को 12वीं के बाद पढ़ने जाना है, क्योंकि मैं उसी समय उसी में था, तो मुझे समझ आया यार ये वाला टिकट भी जोड़ सकते हैं। और एक राजनीति का टिकट है, उस समय नगर पालिका के चुनाव चल रहे थे, माने टिकट एक है और उसके पीछे उद्देश्य 3 है। सबका अपना अपनी यात्रा है, मगर मंजिल वो एक जगह एक हो जाता है। तो वो संघर्ष, तो हमने फिल्म बनाई और बड़ी अच्छी वो यात्रा है। अच्छा, इसमें आपने कैरेक्टर्स का चयन कैसे करा, आपने कलाकारों को कैसे लिया? कभी हम लोग देख रहे थे उस पिक्चर के बारे में, तो आपने स्थानीय कलाकारों को ज्यादा, और शूटिंग आपकी शायद पूरी गुना में हुई है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। अब फिल्म की घोषणा कर दी मैंने, पहले घोषणा की फिर सब कुछ किया, जानते हैं। पहले मैंने पोस्टर की लॉन्चिंग की। मेरे यहाँ पे एक मारिस विजय हैं चेन्नई के, वो तो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हें काफी अच्छी। अभी एक फिल्म आई हुआ था कनाल, जिसमें AR रहमान म्यूजिक डायरेक्टर थे और वो सह थे उनके साथ, तो बड़ी फिल्म थी, अभी बड़ी चली वो बॉक्स ऑफिस में। तो वो मित्र थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि सर मैं एक फिल्म बनाना हूँ, आप इसमें हेल्प करोगे क्या? उन्होंने कहा चल तेरे लिए फिल्म में मैं आता हूँ। तो वो मेरे साथ आ गए बोर्ड में, हमने पोस्टर की लॉन्चिंग कर दी भोपाल में, चित्रवार्ती फिल्म फेस्टिवल था वहाँ पे भोपाल में, तब लॉन्चिंग की। अब बात आई चयन कलाकारों का कैसे करेंगे? मैंने कहा यार पैसे वैसे तो उतने हैं नहीं,
आप पता है मैंने ये भी संकल्पना पापा से कही थी कि मेरे पापा मैं पिक्चर बनाऊंगा, लेकिन इसमें आप पैसे वाली हेल्प मेरी आप नहीं करोगे या कोई नहीं करोगे, मेरा वो है तो मैं ही उसको मेरा सपना है मैं पूरा करूं। हाँ मेरी खुजहाल है तो इसको मैं ही देखूंगा यार अपने हिसाब से। तो उसको किया, घोषणा भी कर दी। तो कलाकार लेने थे यार, अब मैं ऐसे ढूंढता था यार ये निर्मल जी हमारे अच्छे हैं, इनको ले लेते हैं, वो राम चाचा अच्छे, इनके बाल ठीक है यार, इनको ले लेते हैं, और दिलीप चाचा दिखते थे यार ये ठीक विधायक बनेंगे, इनको ले लेते हैं। फिर थिएटर अपने यहाँ विष्णु जी हैं, वो थिएटर का बड़ा अच्छा काम है उनका, तो उनसे मैंने कहा कि यार सर मेरे को चाचा मेरे को कुछ लोग चाहिए, तो उन्होंने कुछ लोगों से परिचय कराया। तो जो जूनियर कास्टिंग थी वहां से ले ली, सीनियर कास्टिंग वो मैडम है हमारी बरसैया जी, वो भी उन्होंने दी। तो कुल मिला के वो बढ़िया फिल्म बनी। चयन करनी थी जगह की, तो प्रदीप चाचा है ओमकार कॉलेज वाले, उनके कॉलेज को एक बना दिया। फिर राजेश जैन जी हैं शुगर मिल वाले, तो उनके घर को वो विधायक का घर बना दिया, वहाँ शूटिंग कर ली, और वो फिल्म में पता नहीं चलता असल। और आज आप कल मानोगे नहीं, मतलब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी भैया। वो फिल्म जब मैंने घोषणा की थी ना, तब आप मेरा अकाउंट देखती ना, मेरे अकाउंट में 11,000 रुपए थे। वो 11,000 रुपए जब शुरू की तो 11,000 रुपए थे, और जब फिल्म बनाई तो 20-25 लाख रुपए हमने उस फिल्म में खर्च कर दिए, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, तब ईश्वरी था। तो ये आपकी यात्रा बड़ी रोचक रही। अच्छा, इस फिल्म को आपने कहीं प्रमोट किया, कहीं कहाँ तक पहुंची ये फिल्म? हाँ, ये भी बहुत बड़ा हो रहा। और फिल्म बना ली, असल में शुरुआत वेब सीरीज बना रहे थे। ऐसा सोचा कि वेब सीरीज बना देंगे OTT, मैंने कहा नहीं यार इसको फिल्म ही रखेंगे, वेब सीरीज का नाम नहीं देना। MX प्लेयर उस समय बहुत फेमस था, तो MX प्लेयर को मेल किया, और शिमारू और हंगामा, तो शिमारू उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना पिक्चर का, और पिक्चर MX प्लेयर पे आई। करीबन 27 मिलियन, मतलब 2,70,00,000 लोगों ने इस फिल्म को देखा। तो अभी हाल ही में मेरे को आया है लास्ट मंथ, उसका वो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो एक हिपिक्स इंटरनेशनल करके OTT है, तो संभवतः उस पर भी अपनी 15-20 दिन में वहाँ पे आ जाएगी। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, जैसे आपने बताया टिकट एक है, विद्यार्थी को जोड़ा, आपने विधायक को जोड़ा और युवा को जोड़ा। अगर हम लोग शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो कैसे समझाएंगे आप लोग? वो फिल्म देखिए ना, इसको फिल्म देखिए। अच्छा, उसके लिए फिल्म देखना है। वो आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे। ओके, ठीक है। मैं भी जैसे अभी ग्वालियर में एक फिल्म फेस्टिवल था, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखा गया है, तो उसके बारे में हमको जानना चाहते हैं। वो भी एक बड़ी अच्छी यात्रा थी। असल में अपनी एक सतपुड़ा चलचित्र समिति और भारतीय चित्र साधना, जिसका अभी मैं बता रहा था, वो संस्थाएं हैं। तो वो भारतीयता, भारत बोध, भारत का विषय, सिनेमा में भारतीयता हो, बॉलीवुड ना हो, भारतीय सिनेमा हो, ऐसे कुछ कार्य करते हैं। तो वो फेस्टिवल उनके तत्वाधान में हुआ ग्वालियर में। तो उसमें मुझे इस बार डायरेक्टर का दायित्व था फेस्टिवल में, और करीबन हम लोगों ने 200 से ज़्यादा फिल्में उसमें आई फेस्टिवल में, और उसकी शुल्क भी मात्र 100 रुपये रखी थी। तो पूरे मध्य प्रदेश। अच्छा, जो फिल्में थी वो क्या केवल हिंदी फिल्में थी या सारे? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। तो मुख्यतः बुंदेली थी, हिंदी थी, कुछ निमाड़ी और कुछ अन्य भाषाएं जो अपने सकती हैं उसकी, और सब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे, मतलब स्टूडेंट्स। तो वो बड़ा अच्छा फेस्टिवल। टिकट एक संघर्ष बड़ी अच्छी रही। अभी हम लोग देखते हैं एक भारतीय सिनेमा हुआ हमारा, एक वैश्विक सिनेमा है, इन दोनों में क्या बड़ा अंतर देखते हैं? और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है क्या कहीं कहीं अपने मूल को हम खो रहे हैं? 2 प्रश्न आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न। असल में क्या है ना, देखो विश्व को देखो, फिल्म देखो, सिनेमा कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज है जैसे बॉटल सामने रखी हुई, तो वो बॉटल जैसा सिनेमा नहीं है। सिनेमा मतलब हमारा जीवन, हमारी विचार, हमारा दर्शन, हमारा धर्म। सिनेमा हम सभी को प्रभावित करता है, प्रत्येक व्यक्ति को। तो उसके साथ एक कृतत्व बोध है, जिम्मेदारी है जो हमारे ओर आती है। जब अपन पश्चिम को देखते हैं, वेस्ट को, तो वो तो चले ही एक एस्थेटिक्स को लेके थे, मनोरंजन को लेकर साथ में चले थे। लेकिन जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी बात हुई, तो भारतीय सिनेमा कला है। क्या है, और हमारे यहाँ कला क्या, कला और धर्म अलग नहीं है, एक है। आपको पता है कला का सृजन कैसे हुआ? बताएं। बड़ा अच्छा इस पे प्रसंग है, क्योंकि हम आस्तिक लोग हैं भारत में रहने वाले, तो हमने हर चीज को आस्था से जोड़ा, कोई को चलाना है। नाट्य शास्त्र की रचना ध्यान में आती है। उस समय एक समय ऐसा था त्रेता के बाद, जब प्रारंभ हुआ कलयुग, तो उस समय पे लोग धर्म को भूलने लगे और थोड़ा सा विमुख होकर
गलत चीज़ों में जाने लगे। तो देवताओं को बड़े चिंता में आया, ऋषियों को चिंता में आया, तो वो देवताओं के पास पहुँचे। देवता पहुँचते हैं सीधे हमारे आराध्य जो भगवान विष्णु हैं कला के, कि भगवान अब क्या करें, क्या क्या हो रहा है समाज में। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप चारों वेदों का मूल लेकर एक पंचम वेद की रचना करो। तो उन्होंने भरत मुनि को चुना और नाट्य शास्त्र की रचना की। उन्होंने कहा कि भाई साहब अब आधार क्या होगा। विष्णु जी से कहा कि नाट्य शास्त्र हम रचना है, अब ये फेमस होना चाहिए, इसका आधार क्या होगा। और हमें याद है जब जब धर्म की स्थापना होती है तो आप आते हो। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम मुझसे कहो, जो कहोगे मैं करूंगा। तो भरत मुनि भी क्या रहे होंगे कि उन्होंने जो पहला प्ले लिखा समुद्र मंथन का, उसमें मोहिनी का कैरेक्टर दिया भगवान विष्णु कि आप मोहिनी का कैरेक्टर जो है निभाओ। तो वो मेथड एक्टिंग जन्मी, उस समय रस जन्मे, 9 रस जन्मे, लेकिन उसके पीछे वो कर्तव्य बोध था, वो जिम्मेदारी थी। तो वो के जो असुर देवासुर संग्राम हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो कला क्यों जरूरी है कि समाज में जब गड़बड़ हो तो वो कला आए सामने, फिल्में आए सामने और वो बच्चों लोगों को सिखाए। तो विदेश में वो गायब दिखता है, लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो उसमें भारत बोध, भारतीय सिनेमा, वो विमर्श, वो हमारे तत्व वो जुड़े हुए हैं। विवेकानंद जी शिकागो में कोई बात तो करने गए थे वहां से कि हमारा धर्म मात्र कोई हिंदू धर्म नहीं है, भारत की पूरी एक भारत की बात है। तो वो हमें लेके चलना है। मही भाई, जैसे आपने अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो फिल्मों को कैसे बदल रहे हैं। पता है ये अब इसमें मैं जो देखता हूँ, एक सकारात्मक परिणाम ये आया कि उन्होंने फिल्म को घर घर तक पहुंचाया, डिसेंट्रलाइज किया। मगर एक वही गड़बड़ है कि इस तरह का कंटेंट आ रहा है जो कंटेंट आना नहीं चाहिए। इसलिए मुझसे आप कभी पूछेंगे ना कि वेब सीरीज या फिल्म, तो मैं फिल्मों को क्यों चुनता हूँ, क्योंकि फिल्में हम सब मिलकर देख सकते हैं। वेब सीरीज के लिए कोना देखना पड़ता है। नेटफ्लिक्स ने 10,000 करोड़ से ज्यादा, मैं नेटफ्लिक्स के अभी हेडक्वार्टर गया था जो इंडिया में, नेटफ्लिक्स ने 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है फिल्मों में। और वो ऐसे वेस्टर्नाइज्ड चीजों को भारत में ला रहे हैं जो भारत की नहीं है। जैसे LGBTQ आजकल देखने मिलता है। ये क्या होता है? मतलब ऐसी चीजें जो हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, उनको पुरुष पुरुष, महिला महिला, उनके संबंध, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत को यदि खत्म करना है, भारत को खत्म करना है तो भारत के परिवार को खत्म कर दो। परिवार को कैसे खत्म करेंगे, तो जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उन्हें खत्म कर दो, तो उनको व्यसन में लगा दो। तो वो इस तरह की फिल्में देखेंगे, इस तरह का कंटेंट देखेंगे। डेटिंग कल्चर, डेटिंग ऐप आ गए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट जैसी टर्म है। अभी फैमिली मैन में देख रहा था 4 दिन पहले, तो उसमें फ्रेंड्स विद बेनिफिट जैसा शब्द का आप उपयोग कर रहे हो कि आप मेरी मित्र बन जाओ, लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए, कोई उसमें बात नहीं। तो हमारे यहाँ शादी जो मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन है वो वंश बढ़ाने का एक बात है। तो ये जो हो रहा है ना, ये बहुत चिंतनीय है। हमें मतलब हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि हमारा बच्चा यदि पढ़ रहा है तो एक बार उसको देख लें। उसके मोबाइल में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं सॉरी, कोई भी एक ऊटपटांग वेब सीरीज या कंटेंट तो नहीं देख रहा वो। बहुत अच्छी बात बताई कि आज हम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बदल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत बढ़ गई है कि एक बार हम बच्चे को चेकआउट करें। और जैसा आपके बारे में है कि आप पत्र पत्रिकाओं में लेखन भी करते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिलेगी, आपको लेखन कार्य भी करना चाहिए? देखो, प्रेरणा तो ऐसे ना कि हमारे घर में मतलब हम पिताजी भी पढ़ते हैं, पूरा घर पढ़ता है। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ तो लिखना पढ़ना हमारा काम ही है। तो स्वदेश और पांचजन्य आता था घर पे, तो वो पढ़ना हमेशा से हुआ। और ये वाला चिंतन, भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड, ये एस्थेटिक्स, कला, तो ये विमर्श दिमाग में आता है। मैं उसको किसको सुनाऊं, तो मैं सोचता हूँ मैं उसको लिख लेता हूँ ना, तो 4 लोग पढ़ेंगे तो लोग फिर अब मेरी प्रशंसा भी करते हैं। आप दोनों चीज़ों से जुड़े हैं, आप फिल्म मेकर भी हैं, फिल्म भी बना रहे हैं, तो लेखन कार्य भी कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा आत्मसंतोष किस जगह मिलता है, लेखन में या फिल्म में? फिल्म तो इमोशन है, मगर लेखन एक ऐसा है ना जो साथ में चल रहा है, वो सब चलता रहेगा। फिल्म लेकिन मेरा पैशन है, मतलब मेरा भगवान जैसा है ना, मेरा धर्म है। भाई बहुत अच्छी अपनी चर्चा चल रही है, तो मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिनेमा जगत है वो समाज पे प्रभाव डालता है क्या? कोई उदाहरण देके बताइए। भारी प्रभाव है। जैसे सिनेमा हम लोगों की कथा होती है जो भारी प्रभाव डालती है। एक प्रसंग सुना था,
भारत में पहले जब सिनेमा आया तो 1999 की बात है, एलिस गाय की फिल्म लगी थी द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु का जन्म। वो पिक्चर देख रहे हैं। पहले क्या था, फिल्में अंग्रेजों के लिए लगती थी क्योंकि हम लोग गुलाम थे, गुलाम नहीं थे, हम संघर्ष कर रहे थे। तो एलिस गाय की फिल्म लगी थी, तो अपने दादा साहेब फाल्के उस समय वो फिल्म नहीं बनाते थे, नासिक के एक परिवार से वो आते हैं और स्वतंत्रता संग्राम जैसे इन्वॉल्वमेंट उनका था और बड़ा सोचते थे कि यार बस भारत आजाद। तो एक दिन अपने परिवार को, अपनी बहन, धर्मपत्नी जी, बेटे और सो फिल्म देखने चले गए, वो फिल्म बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो उनकी बहन और पत्नी जो एकादशी का व्रत करती है, एक के आराध्य विष्णु है, एक के आराध्य शिव है, वो खुद लिख रहे हैं अपनी किताब में। वो यीशु की फिल्म देख के, जीसस की फिल्म देख के रोती है कि ये देखो सूली पे चढ़ गया। और उस समय फिल्म साइलेंट थी, 1999 फिल्म। तो दादा साहेब फाल्के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन हम घर आ रहे थे ना, तो वो खुद लिख रहे हैं उनकी पुस्तक में, उनकी जीवनी में है ये। उन्होंने सोचा यार अब मैंने ये करना है कि फिल्में मैं बनाऊंगा और अपना मेरा जीवन सारा धंधा खत्म, फिल्में ही बनाऊंगा। तो वो 2 साल बाद 1901 में लंदन चले गए, लंदन में फिल्म सीख कर आए। और जब भारत आए पहली बार तो उनके पास पैसे नहीं थे। उस समय क्या था, फिल्में जो थी उन्हें अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, तो महिलाएं मिलती नहीं थी काम करने, कोई पैसा लगाता नहीं था। तो खुद का घर गिरवी रख दिया, खेत गिरवी रख दिए कैमरा रेंट पे लाने के लिए। तो लंदन से कैमरा रेंट पे आया, सरकार से बिना परमिशन लिए चुपचाप फिल्म बनाई। पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, जिसमें 10 साल लग गए। 1903 से 1913 में जाके रिलीज हुई और वो मूक फिल्म थी, साइलेंट फिल्म थी। तो वो फिल्म का प्रभाव था, भारतीय सिनेमा का उदय हुआ और हम आज देखते हैं कि सिनेमा भरपूर है। मगर जैसे आज के समय में केरला एक स्टोरी है, धुरंधर पिक्चर्स आ रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या है ये वही सपना है जो दादा साहेब फाल्के ने उस समय लिया था ना, सोचा था ना कि मेरी फिल्मों में भारत की बात हो। तो 100 फिल्में उन्होंने बनाई, 100 फिल्मों की यात्रा है। तो वो अब दिखाई देता है, जब थोड़ा सा भारत का वातावरण हुआ ना, तो अपन अपनी फिल्में देखते हैं। केरला स्टोरी आती है, शतक आती है, तो उसमें भारत की बात है, लोग देखते हैं। मयूरी, क्या राष्ट्र निर्माण फिल्मों से संभव है? फिल्म राष्ट्र निर्माण का ही एक बहुत बड़ा साधन है। कैसे? क्योंकि राष्ट्र है, राष्ट्र के बहुत सारे आयाम है, तो उसमें फिल्म भी तो एक जनाधार रखती है ना। और फिल्म का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। एक फिल्म आप पुरानी देख लेते हो, आपको जीवन भर वो गाना याद रहता है। मेरा छोटा भाई है गर्वित, वो 5 साल का था, 3 साल का होगा उस समय, 5 या इतना समय का। तो वो तान्हाजी देखने गया था वो फिल्म, उस समय मेरे साथ ही गया था। तो आज तक वो जो ताना नाना और तानाजी है ना, उसके एक कैरेक्टर है कि उसको जीवन में तानाजी जैसा बनना है। तो अवचेतन पर प्रहार करती है फिल्म। आज की जो फिल्में हैं भारतीय संस्कृति को किस रूप में देखते हैं? भारतीय संस्कृति तो है ना, और सिनेमा माध्यम है, तो फिल्में जब बने उसमें भारत की बात हो, भारत का दर्शन होना चाहिए। हमारे हमसे जुड़ी फिल्में हो, हमारे इतने सारे आदर्श पुरुष हैं, विवेकानंद जी के ऊपर फिल्म बनना चाहिए, भगत सिंह जी के ऊपर फिल्म बनना चाहिए, और हम उसे देखेंगे ना। और परिवार हो, परिवार की बात। माही, बहुत अच्छी हमारी जो चर्चा है वो चल रही है। मैं जानना चाहूँगी कि माही दुबे जी अपने शब्दों में बताएं, सफलता के लिए सबसे बड़ी बातें क्या जरूरी है? सफल तो देखो अभी तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे सफल अभी होना है, मैं यात्रा में जी। मगर मैंने जो समझा, सीखा, तो मुझे समझ आता है कि जो भगवान कृष्ण है ना, वो हमारी बड़ी हेल्प करते हैं गीता में। उन्होंने जो अपना कर्म योग बताया है, और कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, सफलता तो देखो मिलनी है ही ना। और हमने संकल्प कर लिया ना कि हम सफल होंगे, चाहे कहीं भी जाएं होंगे। और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमें सफल होना है? अरे इस यात्रा का आनंद लो ना, ये यात्रा के कम है क्या? हम इतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, ये भी एक सफलता का पैमाना है। भाई, जैसे अगर आपके जीवन पे, जैसे आप लोगों के साथ पिक्चर बना रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, उन पर पिक्चर काम कर रहे हैं, अगर आपके जीवन पे अगर कभी कोई फिल्म बनाना चाहे तो उसका नाम क्या होगा? देखो ये मेरा तो काम ही नहीं है, पहले जिसको बनाना है वो बनाएगा। आप क्या, मैं जरूर बनाऊंगा कुछ फिल्म। ये चलिए, बहुत अच्छी बात। भाई, जैसे आपने बताया कि 12 वर्ष की उम्र में आपने काम किया, उस समय एक माही दुबे थे, आज आप काम कर रहे हैं, आप एक माही दुबे हैं।
आप 12 साल के माही दुबे को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज? अरे क्या यार, तब तो मैं आनंद ले रहा था, आज भी आनंद ले रहा हूँ। बस इतना सा अंतर है कि अब एक विजन है, तब विजन नहीं था। तब तो फिल्म बनानी थी और नाम चाहिए था कि बस यार मैं कैसे भी करके एक फिल्म बना लूं, लोग मुझे फिल्म मेकर कहने लगे, फिल्म एडिटर कहने लगे। मगर अब विजन है कि यार इससे हमें बदलनी है चीजें, बहुत सारी कहानियां कहनी है, तो वो बात है। एक लाइन में बताएं, सपनों को सच करने का मंत्र क्या है? ईश्वर पे विश्वास और कर्म, वो हम करें। जब कर्म करते हैं तो ईश्वर का नाम उसमें शुरू से लेके आखिरी तक रहना चाहिए। आज के युवा असफलता से डरते हैं और असफलता के डर से काम शुरू नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? अरे सफलता होगी क्यों, जब काम शुरू किया है तो सफल तो होना ही है ना, तो काम ही करो। और अपन सिर्फ काम ही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। अपने हाथ में केवल कर्म कर्म है, बस काम कर। माने हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। भाई अब हम लोग थोड़ा रैपिड फायर राउंड करते हैं, बड़ा अच्छा है रैपिड फायर। तो आपको सडनली जवाब देना है। तो पहला फिल्म आप है, फिल्म या वेब सीरीज? फिल्म। क्यों? वही घर में वेब सीरीज को कोना पकड़ना पड़ता है, फिल्म सबके साथ देखते हैं। संघर्ष या शॉर्टकट? स्मार्ट वर्क। कैसे? स्मार्ट वर्क कर लो ना, संघर्ष भी मत करो, शॉर्टकट भी मत दो। पैसा या पेशन? पैशन और संतुष्टि पहले होनी चाहिए, ये जरूरी है। आप अभी आपने एक नया नाम दिया, भारतीय फिल्म या ग्लोबल सिनेमा? भारतीय फिल्म निश्चित। कैमरा या कलम? दोनों। कैसे? दोनों के अपने महत्व है, पहले लिखूंगा फिर शूट करूंगा। सफलता या संतोष? दोनों। संतोष वैसे सफलता में संतोष है या संतोष में सफलता है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ उसका उत्तर। लास्ट में समाज पे कहीं ना कहीं फिल्मों का प्रभाव पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि जो फिल्में हैं समाज को प्रभावित करती हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव। कैसे? पता है, इसमें एक विचार है, कभी अब लोगों ने सोचा, लेकिन हमें सोचना प्रारंभ करना चाहिए कि जैसे कुछ उदाहरण है। अब शोले आई 1975 में, बात हुई तो वो वेस्ट का जॉनर, वेस्टर्न जॉनर था हॉलीवुड का, उसका कॉपीड वर्जन था, हमने उसको ले लिया। और एक बड़ी यात्रा में ऐसा हुआ कि जो विलन है वो टीका लगाएगा, जो पंडित है वो बुरा हुआ, ठाकुर सिर्फ खून पीने के लिए बैठा हुआ, शोषण के लिए है, शोषण और शोषित का सिद्धांत आ गया। मार्क्स और कम्युनिज्म के जो विषैले जो विचार हैं वो फिल्मों में देखने मिलते थे। 1978 में मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म आई थी गंगा की सौगंध। तो एक सुल्तान अहमद करके फिल्म मेकर थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने भी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें। उस पिक्चर में 4 कैरेक्टर थे। अमिताभ बच्चन नास्तिक होता है, बाकी जो 4 हैं वो लाला, ठाकुर, पंडित और एक कल्लू। तो ये जो चारों जातियां हैं, ऊपर के तीनों वर्ण हैं, ये वो कल्लू को टॉर्चर करती हैं। और जो नास्तिक है अमिताभ बच्चन, वो अपनी चोटी काट देता है, चोटी फेंक देता है और वो कल्लू को बचाता है। मतलब वो क्या फिल्म है। और आखिरी में वो सुल्तान अहमद पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान में भी उसकी खबर है। लेकिन आप देखो ना ये क्या षड्यंत्र है। दीवार में अमिताभ बच्चन नास्तिक हैं, ईश्वर का मंदिर चलते नहीं है, भगवान शिव को जाके गाली दे के आ सकते हैं, लेकिन वो 786 का बिल्ला लेके घूमते हैं अपने हाथ पे। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई बात नहीं है, मगर ये भेद ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या छल है? माने हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी और प्री प्लान करके ऐसा होता है। हाँ, अब आपके समय की एक फिल्म बड़ी फेमस आई है, DDLJ, आप लोगों ने उसको बड़ा फेमस किया है 1995 में। तो उसमें राज और सिमरन की प्रेम कथा, लव स्टोरी वो है, लेकिन उस बारे में सोचो, क्या वो लव स्टोरी है? क्या है लव स्टोरी है? क्या एक घर की लड़की भाग रही है, उस कहानी को मनोरंजन में ले रहे हैं और उसको हमने गोल्डन डायमंड जुबली बना दिया, 100 दिन तक चला दिया टाकीज में। आज भी उस फिल्म को देखते हैं, उसमें राज नालायक है, कुछ नहीं करता, दारू पीता है, बस गाना गाना जानता है, गिटार बजा लेता है, लड़की को पटा लेता है, तो वो हीरो हो गया। मतलब सारे मॉरल डिबेट खत्म, बस वो प्रेम ही है इसलिए सब अच्छा। और वो पिता को छोड़कर लड़की भाग रही है, वो ठीक है क्या? तो ये, और फिर आज जो घातक हो रहा है, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की स्थिति पैदा हो गई क्या, कि पुष्पा विलन ही हीरो है, वो पुलिस वाले को कपड़े उतरवा देता है और हीरो है। तमाम एनिमल में वो एनिमल जैसे काम करता है, लेकिन वो हीरो है। तो हमारी मोरालिटी तो डिस्टर्ब नहीं हो रही ना फिल्मों से, ये भी एक चिंता है।
साथियों, आज के हमारे पॉडकास्ट रहा माही दुबे जी के साथ था, वो काफ़ी अच्छा लगा। उनके संघर्ष, उनने कोरोना काल को कैसे आपदा को अवसर में बदला, वो हम लोगों ने सीखा। और कैसे करके उन्हें समाज के लिए रचनात्मक काम एक छोटे से शहर से निकल के बॉलीवुड और हॉलीवुड, जिसे हम लोग अब फिल्मी दुनिया कह, भारतीय फिल्मी जगत कह रहे हैं और वैश्विक जगत कह रहे हैं, उसमें अपनी यात्रा पूर्ण किया। मुझे आशा है कि माही दुबे जी का जो संघर्ष, उनकी जो प्रेरणा, उनके पीछे उनके परिवार की जो ताकत, सबका जो आशीष और प्रेम और स्नेह है, उनको सफलता की ओर जाए। और हम फिर माही जी के साथ एक बड़ा अच्छा ब्रॉडकास्ट करेंगे जब हमारे माही भाई कोई बड़ा सा अवार्ड लेके हम लोगों के बीच में आएंगे। मुझे आशा है कि जैसे आज उन्होंने हमें समय दिया, वैसे उस समय भी हम उनसे समय लेंगे, फिर उनको शूट करेंगे। अभी वो कम उम्र में इतना आयाम पे, नए आयाम पे पहुंच रहे हैं और समाज की और राष्ट्र की अपेक्षाएं, और पहला ऐसा युवक जो निर्भीक राय अपनी इन सब विषयों के लिए रखता है। माही जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत